جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 7 کا دوسرا لانگ کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ دوسرا لانگ کویسچن کیا ہے بیٹا؟ پاکستان کی اہم معدنیات۔ بولیے کیا لانگ ہے؟ ٹھیک ہے، منرلز، معدنیات۔ اب معدنیات والے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پیچھے ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک گزرا ہے، اور وہ ہے افرادی قوت، مین پاور، افرادی قوت۔ یہ جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس میں ایک شارٹ ہے اور کچھ ایم سی کیوز ہیں۔ شارٹ میں بیٹا یہ ہے کہ افرادی قوت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف مین پاور۔ افرادی قوت کی تعریف کیا ہے بیٹا؟ ادھر دیکھیے، کہتا ہے 16 سال کی عمر سے زیادہ کے وہ لوگ، کیا 16 سال کی عمر سے زیادہ کے وہ لوگ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی معذور نہیں ہیں، ایکٹیو ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اس میں فل ٹائم کام کرنے والے بھی ہیں، پارٹ ٹائم کام کرنے والے بھی ہیں، مطلب بزنس کرنے والے بھی ہیں، ملازمت کرنے والے بھی ہیں، ہر قسم کے وہ لوگ جن کی عمر 16 سال سے زیادہ ہو اور وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو ان افراد کو بیٹے کیا کہا جاتا ہے؟ افرادی۔ آپ اپنی بک پر دیکھیں گے، ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، کہتا ہے افرادی قوت لیبر فورس یا ورک فورس سے مراد، بولیے ذرا اونچا، آپ ہی بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد ہیں جو کمانے کے اہل ہوں۔ ان میں برسر روزگار، بے روزگار، دونوں طرح کے افراد شامل ہوں۔ یہ معیشت کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سارے کمانے والے لوگ، بے روزگار، پارٹ ٹائم ورکر، تنخواہ دار لوگ، سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو معیشت کو قابل فروخت اشیاء و خدمات مہیا کر، یعنی وہ افراد جو کوئی بھی چیز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان افراد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹا شارٹ ہے۔ کیا ہے یہ؟ شارٹ۔ اب اپنی بک پر آئیں، اس میں ایم سی کیوز دیکھیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان میں اس وقت 71.76 ملین افراد یہ بیٹے افرادی قوت ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے اور کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ان میں سے 67.25 ملین افراد کو روزگار حاصل ہے، یعنی ٹوٹل بیٹا جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ہے 71%، لیکن 71% میں سے 67% افراد وہ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے ملا ہوا ہے، لیکن تقریباً 4.5% وہ لوگ ہیں کہ جو کام کرنے کے اہل تو ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کام، یعنی ان کے پاس کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بیٹے وہ ہوگی بات۔ اب یہ یہ پچھلا ٹاپک ہو گیا، اس میں صرف یہ ایک شارٹ اور یہ ایک ایم سی کیوز، 2 ایم سی کیوز۔ اب میرا پتر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معدنیات۔ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے معدنیات کی تعریف لکھنی ہوگی، جو آپ نے خود سے لکھنی ہے، بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ پہلے آپ اردو میں لکھیں، بعد میں انگلش میں لکھتے ہیں۔ لکھو بیٹا معدنیات کی تعریف، یہ پہلی لائن شروع میں آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، معدنیات کی تعریف، ڈیفینیشن آف منرلز۔ لکھو گے وہ تمام اشیاء جو زیر زمین ہوں، پہلے اردو میں لکھو پھر انگلش میں لکھواتا ہوں، وہ تمام اشیاء جو زیر زمین ہوں، خدا تعالی کی طرف سے فائدہ مند ہوں، خدا تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہوں اور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں، معدنیات کہلاتی ہیں۔ All the things which are underground
all the things which are underground, God gifted and beneficial for humans are called minerals. बोलिए क्या तारीफ़ है? वो तमाम अशिया जो ज़ेर ज़मीन हो, खुदा ताला की तरफ से अता करदा हो और इंसानों के लिए फ़ायदा, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? हम मादी। अच्छा, अब बेटा यहाँ देखिए, आप अपनी बुक पर भी देखेंगे तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ़। अब आप अपनी बुक पर आ जाएंगे और बुक की पहली लाइन पर आप लिखेंगे तारुफ़ यानी इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में उसने बताया है कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की मादनियात रखी हैं, इनकी कई किस्में बनती हैं, लेकिन दो बड़ी बुनियादी किस्में बनती हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, मादनियात दर्ज दैल दो अक़साम की होती हैं, लिखा हुआ है। यहाँ आप हेडिंग बनाएंगे मादनियात की अक़साम, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मादनियात की अक़साम, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। बेटे मादनियात दो किस्मों की होती हैं, कौन कौन सी ज़रा बोल दें बेटा? एक होती हैं धाती और एक होती हैं गैर धाती, यानी मेटेलिक मिनरल्स धाती मादनियात, और नॉन मेटेलिक यानी गैर धाती मादनियात। जी बेटा, मेटेलिक धाती बेटे जो मतलब सख्त हों, ठीक है, जो मटेरियल में हों और जो लिक्विड में हों, क्या हों? लिक्विड में, वो क्या कौन सी होंगी? नॉन मेटेलिक या गैर धाती। अब यहाँ देखते हैं धाती और गैर धाती। बेटा इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, हर पॉइंट में दो या तीन बातें लिखी हुई हैं। मसलन पहले नंबर पे हर पॉइंट में, हर मिनरल में पहले नंबर पर आपको वो उस मादनियात का तारुफ करवाएगा। नंबर 2 वो पाकिस्तान के किस किस शहर में पाई जाती है वो बताएगा, या फिर आपको तीसरी चीज़ बताएगा कि उस मादनियात का या उस मादनी चीज़ का फ़ायदा क्या है, यूज़ क्या है। तो आप अपनी बुक पर आएँ। पहली बेटे मादनी, पहले सबसे पहले कौन सी लिखी हुई हैं? बोलिए 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 बोलिए, धाती मादनियात। अब धाती मादनियात में, मेटेलिक मिनरल्स में, धाती मादनियात में पहला नाम किसका लिखा हुआ है? खाम लोहा, आयरन ओर। बोलो क्या बोलते हैं इसको? आयरन। इसमें पहली लाइन पर, इसमें अब हर पॉइंट में सब हेडिंग्स हैं। तो बेटा पहले पॉइंट पर आप पहली हेडिंग बनाएंगे तारुफ। शाबाश, तेज़ी के साथ तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब वो कहता है, अंडरलाइन कीजिएगा MCQs, 1957 में पाकिस्तान में खाम लोहा ये प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे मुश्तमिल इलाके, इंक्लूडिंग एरियाज़। मुश्तमिल इलाके इंक्लूडिंग एरियाज़, ये पाकिस्तान के किस किस शहर में हैं? बेटा ये हैं कालाबाग, डोमल निसार, फिर लंगड़ियाल और चलगाज़ी। ये नाम लिखे हुए मिल गए, ये शहरों के नाम। इन शहरों में ये मादनी, ये खाम लोहा पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है। दूसरी है बेटे तांबा और सोना, यानी कॉपर एंड गोल्ड। पहली लाइन पर बेटा इसमें भी लिखो इंट्रोडक्शन, तारुफ। शाबाश। कहता है जी अब मैं बार बार हेडिंग्स नहीं लिख रहा, बस यही हेडिंग्स हैं जो रिपीट हो रही हैं हर एक में, कहीं पर जाके आएगा यूजेज वाला तो वो मैं वहाँ आपको बता दूंगा। अब यहाँ कहता है तांबा और सोना, बेटे हर कोई जानता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अगले लाइन पर लिखें बेटा मुश्तमिल इलाका इंक्लूडिंग एरिया। ये बलूचिस्तान में बेटा चागी और सेंडक, ये दो शहरों के नाम हैं, यहाँ ये पाया जाता है। अंडरलाइन करें बेटा, दुनिया में 5वें नंबर पर सोना हमारे मुल्क में पाया जाता है। 5वें नंबर पर सोना हमारे मुल्क में पाया जाता है। लेकिन इतने नालायक, नाअहल, नखट्टू किस्म के हुक्मरान अल्लाह ने इस कौम को दिए हैं, क्योंकि ये कौम ख़ुद यही डिज़र्व करती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में आज के दिन तक उन सोने की कानों को खोदा नहीं गया, निकाला नहीं गया। और और अगर कोई कंपनी निकालने के लिए आती भी है तो ये हुक्मरान उसमें से अपना कमीशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कमीशन, करप्शन, लूट मार, वो बेटे जिसकी वजह से कोई कंपनी आती ही नहीं है। फिर बेटा आगे तीसरा है मैंगानीज़। मैंगानीज़ पहली लाइन पर लिखें बेटा इस्तेमालात, यूजेज, उर्दू में इस्तेमालात, इंग्लिश में यूजेज। क्या इस्तेमालात हैं? कहते हैं बेटा ये मैंगानीज़, आप ही बोलें बेटा ऊंची आवाज़ में, क्या इस्तेमालात हैं? ये बैटरी साजी, बल्ब बनाने, रंग साजी और स्टील इंडस्ट्री में। यहाँ लिखें मुश्तमिल इलाके।
मुश्तमिल इलाका ये बेटा लसबेला और ज़िला चागी में पाए जाते हैं। आगे बेटा बॉक्साइट, तेज़ी से बेटा लिखते जाएं, लिखो तारुफ। ये कीमती धात एलुमिनियम बनाने में इस्तेमाल होती है, यहाँ लिखेंगे मुश्तमिल इलाका। ये बेटा आज़ाद कश्मीर में ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, कोस्तान नमक और बलूचिस्तान के ज़िला लोरा लाई, ये जगहों के नाम, शहरों के नाम ये याद करने हैं मेरा बेटा, शहरों के नाम। इसी तरह आगे चले, क्रोमाइट, पहली लाइन पर लिखो बेटा यूजेज, इस्तेमालात। क्रोमाइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल, ये अच्छा, ये जितने भी इस्तेमालात हैं ये शॉर्ट हैं। जिस हेडिंग में भी मैं इस्तेमालात लिखवा रहा हूँ ये शॉर्ट है। जब आप जहाँ जहाँ इस्तेमालात की हेडिंग आती है खुद ही समझ लेना ये शॉर्ट। देखो बेटा इस्तेमालात ये कहाँ, ये स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। मज़ीद बरा ये इंजीनियरिंग के आलात बनाने में भी इस्तेमाल होता है क्रोमाइट। यहाँ आप लिखेंगे मुश्तमिल इलाका। ये बेटा मुस्लिम बाग, लसबेला, चागी और मालाकंड और महमद एजेंसी में ये इसके ज़खायर पाए जाते हैं क्रोमाइट के। आगे है नॉन मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, वो कौन सी, गैर धाती। उनमें पहला है कोयला। बेटे लिखो पहली लाइन पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। कोयला बेटा ये बिजली पैदा करने के काम आता है। अंडरलाइन करें, पाकिस्तान में 185 बिलियन टन से ज़ायद ज़खायर कोयले के हैं। कोयला बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। ठीक है जी। फिर बेटा अगली लाइन पर लिखें इस्तेमालात, यूजेज। पाकिस्तान में कोयला थर्मल बिजली पैदा करने, घरों और ईंट बनाने वाले जो भट्टे होते हैं, ईंटों वाले भट्टे, वहाँ ईंटें पकाने में ये इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ लिखें अहम इलाके, मुश्तमिल इलाके या मुश्तमिल इलाका लिख लें तो उसमें सारे आ जाए मुश्तमिल इलाका। अब इसके जो इलाका जात हैं वो भी शॉर्ट हैं, इस पॉइंट के इलाका जात भी शॉर्ट हैं। वो कौन कौन से हैं, डंडूत, अड, मकड़वाल, फिर हंगू, फिर खोस्त, शारक, डिगारी, शीरियाब, मछ बुलान, हरनाई, जमपीर, सारंग, लाखड़ा, मुज़फ़्फ़राबाद और थर, इन इलाकों में ये कोयला पाया जाता है। आगे बेटा जिप्सम लिखें पहली लाइन पर, इस्तेमालात, यूजेज। ये बेटा सनत में और ज़रात दोनों में इस्तेमाल होता है। ये सेमोथोर को ख़त्म करने के लिए, फिर खाद बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, रोगन बनाने के लिए, फिर ये मुख्तलिफ़ रंगों में होता है। यहाँ लिखेंगे मुश्तमिल इलाका। ये बेटा डेरा गाजी खान, मियाँ वाली, जेहलम, सांगड़, कोयटा, सिब्बी, कोहाट, इन इलाकों में पाया जाता है। आगे है खुर्दनी नमक, रोक साल्ट। ये बेटा लिखें पहली लाइन पर इस्तेमालात, यूजेज। हाँ जी, ये बेटा खुराक के अलावा सोडाइश, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेक्सटाइल मिल और चमड़ा वगैरह की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखेंगे मुश्तमिल इलाका। ये बेटा खेवड़ा नमक की कान आप में से अक्सर ने देखी होगी, वहाँ भी है। फिर ये वाड़छा, कालाबाग और बहादुर खेल, मियाँ वाली, यहाँ पर भी कोयला नमक पाया जाता है। अगला है संगे मरमर। पहला लिखें बेटा इस्तेमालात। इसे इमारात की तज़ीनो आराइश और मुख्तलिफ़ गानों में भी इस्तेमाल किया जाता नहीं, वो मुझे याद आ गया, सुनो ना संगे मरमर, वो नहीं, वो और है, वो यहाँ देखें संगे मरमर। ठीक है, आराइश के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ लिखें मुश्तमिल इलाका। ये बेटा सवाबी, सवात, चागी, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद में पाया जाता है। आगे बेटा चूने का पत्थर लिखें बेटा पहली लाइन पर इंट्रोडक्शन। ये ज़्यादातर सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है और लोगों को लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चूना लगाते हैं ना लोगों को, धोखा देना। फिर यहाँ लिखें इलाका, मुश्तमिल इलाका। ये बेटा सदा मुर्तवा पठवार, दाऊद खेल, जिंदा पीर, मारगला, फिर पेड़ू, मुगल कोट, कोहाट, नौशेरा, मंग पीर, रोड़ी, फिर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई, यहाँ पाया जाता है।
अगला है बेटे सल्फ़र, गंधक। लिखें पहली लाइन पर इस्तेमालात, यूजेज। बेटा आप ही बोलिए ज़रा, ये गंधक कहाँ इस्तेमाल होती है? रंग रोगन, कीमियाई खाद, मसनूई रेशे और धमाका खेज़ मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल। इसके अलावा ये सेमोथोर के ख़ात्मे और गंधक का तेज़ाब तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखें मुश्तमिल इलाका, ये बलूचिस्तान के इलाके ज़िला चागी में पाया जाता है। आखिरी ये बेटे चीनी मट्टी, चाइना क्ले। ये बेटा लिखें इस्तेमालात, ये चीनी मट्टी ज़्यादातर सनत में इस्तेमाल होती है। और आगे बोलिए बेटा, बोलिए बर्तन बनाने और फुलाद पिघलाने वाले भट्टों के अलावा तेल साफ़ करने और स्टील के कारखानों में इस्तेमाल होती। फिर बेटा इस शोबे की अहमियत, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, इसको देख लें। इसका फ़ायदा क्या होता है? तो बेटे नंबर साफ ज़ाहिर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बताता है, कहते हैं इससे हमारे मुल्क में सरमायाकारी बढ़ती है, हमारी इंडस्ट्री फैलती है, सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमतें उनके माल में इजाफ़ा होता है, कौमी आमदनी बढ़ती है, फ़ीकस आमदनी बढ़ती है, दरामदात कम होती हैं, बरामदात बढ़ती हैं, और मुल्क जो तिजारती तौर पर लॉस में होता है इन मादनियात की वजह से पैसे कमा के वो बैलेंस में आ जाता है। तो ये बेटा एक बड़ा इस एतबार से कि ये रट्टे से याद नहीं होना, इस टॉपिक को आपने मसलन पहले सिर्फ नाम याद कर लें। सुनो, पहले सिर्फ नाम याद कर लें कि दाती और गैर दाती मादनियात कौन सी, फिर सिर्फ क्या ही करें, इस्तेमालात याद कर लें जो कल मैंने आपसे सुनने हैं, सिर्फ इस्तेमालात याद कर लें। फिर शहर बेटे बहुत सारे मिक्स हैं, तो अगर आप कॉमन हर हेडिंग में कॉमन 5 नाम भी याद कर लें इब्तदाई मरहले में, तो ये टॉपिक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन बात सिंपल है, ये वो उस बंदे को होंगे जो ये करेगा। मसलन अब कोई तरतीब से नाम भी याद करने ना बैठे, फिर इस्तेमालात याद करने ना बैठे, शहरों के कॉमन नाम निकाल के याद करना ना बैठे, तो बेटे कभी याद नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि आप बैठें और इस तरतीब से याद करें। क्या तरतीब है ज़रा बोल दें, पहले नंबर पे क्या याद करें? नाम, फिर इस्तेमालात कर लें सिर्फ, उसको